Good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of Accounts Standard 11. We are continuing with chapter number 5, Financial Statements of Business Organizations, Final Accounts. In our today's e-class, we will learn question number 9 from your 195th page. So, please be ready along with your textbook, your notebook, your stationery and calculator. Fine. Before we start, let us recall and revise few things. Trial balance has single effect, same side. Adjustment has dual effect, one debit, one credit. ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आएंगे, पीएनएल के डेबिट में आएंगे या बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपीयर होंगे. सो you might be having the thorough knowledge of giving the single effect from trial balance, because this is your fourth sum today we are going to start. So you got the perfect knowledge after solving 3 questions of final accounts. So let us proceed with practical question number 9. Let us start question number 9 on page number 195. As per our system, first of all, we are supposed to tick mark all the adjustments, and after ticking all the adjustments, हमें सारे debit and credit effects दे देने हैं, और उसके ऊपर जो भी आपका adjustment है वो lastly हमें solve करना है. So let us go through with the adjustments first. Here are the adjustments. Stock as on 31/3/2015 is 2,02,000, out of which 2,000 of stock was for advertisement good stock, and from the remaining stock the market value of 30% stock is 20% more. Now total closing stock is of 2,02,000, out of which 2,000 stock is for advertisement purpose, and the remaining 30% stock is 20% more. As per the rule taught by me to you people, closing stock is valued at book value or market price, whichever is lower. Market price या book value जो भी दोनों में से lower होता है उसे हम select करते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज लेस बाय 20%, और बाकी जो 30% का स्टॉक है वो 20% लेस है. वेयरएज रिमेनिंग स्टॉक नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ 5,000. बाकी के जो हमारे गुड्स हैं उसको 5,000 का रिपेयरिंग खर्चा है. सो कंप्लीट वर्किंग आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ. मूविंग फर्दर to second number, that is goods of 7,500 given as advertisement. हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जहां है वहां पे हम टिक मार्क करेंगे. फाइन. नेक्स्ट दूसरा क्या है आपको, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 wrongly recorded as credit purchase. क्रेडिट सेल्स है आपका क्रेडिट सेल्स जो रॉन्गली कहां रिकॉर्ड हो गया है, परचेज में. सो सेल्स में ऐड होगा एंड परचेज में से माइनस. सो दोनों पे हम टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट, राइट ऑफ 30,000 एज बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 10% BDR. दैट मीन्स डेटर्स वाले पॉइंट पे हमें टिक करना होगा. एक BD का है और एक BDR. नेक्स्ट, calculate 10% interest on capital and 6% interest on drawings. कैपिटल भी है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स भी है, सो हमें कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ऊपर टिक मार्क करना होगा. नेक्स्ट इज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड. ये रहे हमारे फिक्स्ड एसेट्स, इसे भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. नाउ आफ्टर डूइंग टिक मार्क्स ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स, हमें क्या करना होगा, एज पर आवर नॉर्म्स
हम क्या कर रहे हैं, सारे डेबिट बैलेंसेस का एक सिंगल इफेक्ट देंगे डेबिट साइड, इधर इन ट्रेडिंग, इधर इन पीएनएल और इन बैलेंस शीट असेट साइड। जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनका हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंसेस का क्रेडिट इफेक्ट देंगे इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और in balance sheet liabilities side. Is this clear? So let us begin with the sum. Prepare final accounts from trial balance and adjustments of Pushpa Traders. This is your trading account at the year ending on 31/3/2015. Here it is profit and loss account of Pushpa Traders on 31/3/2015 and this is the balance sheet. As I have told you earlier as well, balance sheet का जो फॉर्मेट है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको बनाना है। कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट्स। तो जो भी इनके अंडर में आते हैं, फिक्स्ड असेट्स है तो वो इधर ही आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स है तो वो इधर ही आनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। Now let us start with the credit side. कैपिटल दिया हुआ है 3,30,000 का, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज फर्स्ट आइटम ओवर हियर 3,30,000. ओके, नेक्स्ट इज योर सेल्स 8,80,000. 8,80,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स ओवर हियर बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे जस्ट बिकॉज उसके ऊपर अपन ने टिक मार्क करके रखा है, एडजस्टमेंट इज देयर. नेक्स्ट इज योर गुड्स रिटर्न, यहां पे 22,000 है. आई विल डार्कन दिस इज 22,000. ये जो 22,000 है वो हमारे क्या है, परचेज रिटर्न है, बिकॉज यहां पे सिर्फ आपको दिया हुआ है गुड्स रिटर्न. गुड्स रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड कौन से होते हैं, दीज आर अवर परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेजेस में से माइनस. ट्रेडिंग डेबिट साइड यहां पर आएगा टू परचेजेस एंड नेक्स्ट आएगा तुम्हारा परचेज रिटर्न माइनस 22,000. क्या किया है हमने, डेबिट का माइनस क्रेडिट. Is this clear? Moving further. Next is provident fund and contribution to provident fund. Now दोनों में से हमें चूज करना होगा what is provident fund and what is contribution to provident fund. Now PF जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है, जब भी एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए हर महीने in every month he contributes in the अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय. वो हर महीने का जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है इसे अपन क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. अपने सैलरी के हिसाब से, एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉयर जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट एम्प्लॉय के फंड में डालता है, उसे अपन कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. जब वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो एट द एंड या इन बिटवीन जब भी एम्प्लॉई को जरूरत होगी उस प्रोविडेंट फंड का पैसा यूटिलाइज करने की, वो अपने एम्प्लॉयर से विड्रॉ करवाएगा, तो फ्यूचर में एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को पीएफ का पैसा देना पड़ता है. दैट्स व्हाई दिस विल बी योर लायबिलिटी. हमारे लिए प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज कि हमें एज एम्प्लॉयर किसको देना होगा, एम्प्लॉई को देना होगा. सो दैट्स व्हाई प्रोविडेंट फंड विल बिकम द लायबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड विल बिकम योर एक्सपेंस. द सेम टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल in our trial balance chapter. So provident fund जो है that will become your liability and contribution to PF will be your expense. So ये जो 1,10,000 है that will be your provident fund. Provident fund will be in your current liabilities assets liabilities side. Fine.
करंट लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे 1,10,000. अंडरस्टूड? प्रोविडेंट फंड, हाउ मच इट इज? 1,10,000. आगे जाके आपको देखने मिलेगा कि इंटरेस्ट भी है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन दी इनर कॉलम. मूविंग फर्दर, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. अब ये क्यों इन्वेस्टमेंट यहां पर दिया हुआ है? जस्ट बिकॉज कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है हमारे एम्प्लॉइज को पीएफ अकाउंट के ऊपर. पीएफ अकाउंट के ऊपर अगर अपन उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. हमें फायदा होगा एज एन एम्प्लॉयर, तो हम वो फायदा किसको दे सकेंगे? एम्प्लॉई को दे सकेंगे. इसके लिए एज एन एम्प्लॉयर हमने क्या किया? वो फंड जो था, वो पैसा जो था पीएफ का, वो हमने और कहीं पे इन्वेस्ट किया है. सो दैट बिकम्स आवर असेट. अब दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. वो जो इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट में से कमाया है उसका हिस्सा अपन को किसको देना पड़ेगा? हमारे एम्प्लॉई को देना पड़ेगा, बिकॉज उसका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई उसके ऊपर लगाया जाने वाला इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई यहां पे जो आपका प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है दैट इज असेट 1,10,000 और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है दैट इज 8,800. फाइन. सो 8,800 तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा, क्योंकि आपको पीएफ आई एम सॉरी, मैंने बीच में आपको एक्सपेंस बोला था. वो कर्जा हो जाएगा क्योंकि आपको पीएफ अमाउंट के साथ वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉई को देना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आपका ये जो 8,800 है वो लायबिलिटीज में आएगा. प्लीज मेक इट क्लियर. ये जो लायबिलिटीज है 8,800 की, वो इंटरेस्ट है पीएफ के अमाउंट के साथ हमें ये इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय को देना होगा. दैट्स व्हाई एड इट ओवर हियर. यहां पे हम प्रोविडेंट फंड में क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट 8,800. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, इसका टोटल अगर अपन देखेंगे तो बाहर आएगा 11,88,00. फाइन. मूविंग फर्दर ऑन नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस दैट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? 1,65,000. यहां पे दिखाएंगे हम करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 1,65,000. नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट. डिस्काउंट यहां पे भी है, यहां पे भी है, सो डेबिट वाला होगा. डिस्काउंट अलाउड एंड दिस विल बी योर डिस्काउंट रिसीव्ड इन दी अकाउंट ऑफ P&L. क्रेडिट साइड अपन दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. यहां पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. फाइन. हाउ मच इट इज? 15,400. फाइन. नेक्स्ट बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व. इसके ऊपर एडजस्टमेंट साथ में होता है, दैट्स व्हाई हम इसको टिक करके रखेंगे. नेक्स्ट बिल्स. डेबिट साइड के बिल्स हमारे रिसीवेबल्स होते हैं एंड दीज आर अवर पेएबल्स 27,500. बैलेंस शीट का अमाउंट है ये. बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल 27,500. Is this clear? Moving further, goods, sorry, credit balances देखेंगे. हमारा लास्ट है अदर इनकम. अदर इनकम हमारा लास्ट है, वो हमारा इनकम्स में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बाय अदर इनकम्स इट इज 19,600. Is this clear? After completion of debit side हमें क्या करना है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट साइड हमें क्या करना है? डेबिट साइड करना है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल में से माइनस. यहां पे दिखा देंगे हम लेस ड्रॉइंग्स 26,400. नेक्स्ट आर आवर परचेजेस. परचेजेस कहां पर आते हैं? परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट. सो 3,24,000.
900. नेक्स्ट आर आवर गुड्स रिटर्न. डेबिट साइड के गुड्स रिटर्न है तो ये हमारा होगा सेल्स रिटर्न, जो क्या होगा सेल्स में से माइनस. सेल्स में से माइनस मींस क्रेडिट में से माइनस, क्रेडिट में से माइनस मींस हमने क्या किया, डेबिट इफेक्ट दिया. नेक्स्ट कम्स इज प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड हमारा लायबिलिटी था और हर महीने जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए निकालता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है. सो पीएनएल में यहां पर आएगा टू contribution to provident fund, that is 11,000. okay, next is provident fund investment. investment है ये हमारा बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेस्टमेंट में. फाइन, इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में अपन यहां पे दिखा देंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. How much of investment you have done? Of 1,10,000. Next are our debtors. Debtors कितने हैं हमारे, 2,20,000 के इनर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 2,20,000. मूविंग फर्दर, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा ये वाला, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड, टू discount allowed. How much? 50,600. okay, नेक्स्ट अपन का क्या हो जाएगा, बैड डेट्स रिजर्व के ऊपर हमने टिक कर दिया है. नेक्स्ट इज अवर बिल्स. बिल्स डेबिट साइड है, बिल्स आर डेबिट साइड मींस वो हमारे क्या हैं, बिल्स रिसीवेबल. सो बिल्स रिसीवेबल दैट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट असेट्स में आएगा. बिल्स receivables. Bills receivables are of 16,500. okay, moving further, goods है हमारा 1,414, that means opening stock है ये हमारा. so trading में first item that is opening stock of 88,000 to opening stock कितना, 88,000. फाइन, मूविंग फर्दर, डेमरेज आपको यहां पर दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज दिस डेमरेज, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेएबल ऑन लेट रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेलवे और पोर्ट इज कॉल्ड डेमरेज. आपको वो लोग डेट एंड टाइम दे देते हैं, आपके जब गुड्स वहां पर आते हैं तो वो लोग आपको टाइम एंड डेट दे देते हैं. अगर हम वो डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग वहां से गुड्स रिमूव नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम वहां पे कंज्यूम करते हैं, देन दे चार्ज ऑन अस फॉर यूटिलाइजिंग दैट एरिया फॉर योर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. उन्होंने आपको बोल दिया था कि आप यहां से डिलीवरी ले लेना, आपने अगर वहां से गुड्स अपने रिमूव नहीं किए हैं, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो एक्स्ट्रा टाइम का जो वो चार्ज लगाते हैं दैट इज योर डेमरेज. सो गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, इसके लिए इसको कहां लिखेंगे हम, डेमरेज को 3,300 टू डेमरेज अकाउंट कितना आएगा यहां पे आपका 3,300. फाइन, जिसने भी ट्रेडिंग का स्पेसिमेन किया है उसको पता होगा. नेक्स्ट इज कैरिएज इनवर्ड. टू कैरिएज इनवर्ड 21,000. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस. नाउ दिस ट्रेड एक्सपेंस विल कम इन दी P&L डेबिट साइड. ये हमारा एक्सपेंस है, टू ट्रेड एक्सपेंस. फाइन, 1,00,000 रुपीज. नेक्स्ट इज कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इज करंट असेट. कैश बैलेंस हाउ मच, 10,000. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपका देखो डेबिट साइड में क्या जा रहा है, बैंक बैलेंस 35,100. अगेन करंट असेट्स, बैंक बैलेंस 35,100. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड असेट्स है. फिक्स्ड असेट्स आर ऑफ 4,80,000. फिक्स्ड असेट्स में यहां पे दिखा देंगे 4,80,000.
80,000. Okay, and the last one is advertisement expense. Again, advertisement expense will be in profit and loss account debit side. To advertisement expense of 10,000. All the debit and credit single effect of trial balance we have given. Now we are supposed to solve adjustment. The very first adjustment is of your closing stock. It requires the working. Please do concentrate how the working goes, and you are supposed to do this working. Now, working of closing stock. Now closing stock is of 2,02,000. Fine. Out of which 2,000 of stock was for advertisement good stock. 2,000 का जो स्टॉक था वो किसके लिए था? एडवर्टीजमेंट के लिए था. नाउ आवर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 2 lakhs. अब ये 2 lakhs के अंदर बाइफर्केशंस हैं. फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक द मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक, यानी इसका अपन को कितना निकालना है? 30%. 2 lakh का 30%. Now, please check it out over here. 2 lakh का 30%, it will be 60,000. 60,000 के लिए भी आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? Is 20% more. इसका भी आपको 20% more करना है. So, your market value will be 72,000. यहां पे आपको ऐड कितना करना है? 12,000. दैट इज योर 20%. नेक्स्ट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक. एक और 30% करना है. 30% करने पर कितना आता है? 60,000. 20% लेस माइनस 20%. कितना माइनस करोगे? 12,000. देन इट विल टर्न अप टू 48,000. Fine. This is your book value. This is market value. Book value, market value. और क्या बोला है? Where is remaining stock needs? अब remaining stock कितना हो जाएगा? 2 lakh में से 60 that means 120 अगर अपन का हिसाब हो गया है, 2 lakhs में से 120 का हिसाब हो गया है, then your remaining is of, now your remaining is of 40%. That will be 80,000. Fine. 80,000 में क्या बोला हुआ है? Whereas remaining stock needs to be repaired at the expense of 5,000. 5,000 का इसमें repairing expense है. Fine. So it will be of 75,000. Is this clear? Now we are supposed to select. Closing stock is to be valued at market or book value, whichever is lower. यहाँ पे 60,000 है, ये 72,000 है. So 60,000 will be selected. This is 60 and this is 48. 48, 80 and 75. 75. Therefore, 60,000 plus 48,000 plus 75,000 makes 1,83,000. 1,83,000 is your closing stock. Closing stock appears on credit side of trading account and current assets. यहां पे आप दिखा दोगे by closing stock of 1,83,000. Fine. And another effect will be in current assets. यहां पे आप दिखाओगे closing stock of 1,83,000. Now one more thing is added over here, that 2,000 of stock was for advertisement. Advertisement के लिए stock अपन ने 2,000 का रखा हुआ है. So this stock will be current account. यहाँ advertisement goods of 2,000. Fine.
एंड ये एडवर्टीजमेंट में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L. माइनस करके दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट गुड्स स्टॉक ऑफ 2000. Okay, so like this way we have done the adjustment of closing stock. Next is goods of 7500 given as advertisement. Goods going out other than sales, वो क्या होते हैं तुम्हारे purchases में से माइनस हो जाएंगे. That means हमें यहां पे माइनस करना है advertisement goods of 7500. हमने एडवर्टीजमेंट के लिए क्या किया है, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट इट इज गिवन. सो एडवर्टीजमेंट के खर्चों में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा. सो अनदर इफेक्ट विल बी इन P&L डेबिट साइड. वी विल राइट गुड्स गिवन एज advertisement fine of 7500 and our outer column will be 15500. इसका 7500 का ड्यूअल इफेक्ट कैसे आया, डेबिट में से प्लस, तो डेबिट में से प्लस इज डेबिट एंड वन मोर इज योर क्रेडिट, दैट इज डेबिट का माइनस इज योर क्रेडिट. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेजेस. थे हमारे सेल्स, रिकॉर्ड कहां हो गए हैं, परचेज में. तो सेल्स थे, नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे. प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स. अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कितने के हैं, ऑफ 10,000. फाइन. जैसे हमारे सेल्स हमने रिकॉर्ड किए वो भी क्रेडिट सेल्स थे, उतने से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे. सो क्रेडिट का प्लस इज क्रेडिट एंड वन मोर विल बी योर डेटर्स. डेटर्स में क्या हो जाएगा आपका, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000. फाइन. नेक्स्ट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेजेस. तो परचेजेस में से क्या करना होगा, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000. डेबिट में से माइनस इज क्रेडिट. नाउ रॉन्गली रिकॉर्डेड थे, दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स में से भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि वो हमारे परचेजेस थे ही नहीं. माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000. इज दिस क्लियर? एंड योर आउटर कॉलम इज ऑफ 155. Moving on to next adjustment, that is write off 30,000 as bad debt from debtors and provide 10% BDR. 30,000 हमें क्या करना है, BD new माइनस करना है, माइनस BD new, that is 30,000. Now what we are supposed to do is ये 2,20,000 plus 10, 2,30,000. 2,30,000 में से माइनस क्या हुआ आपका, 30,000. इट कम्स टू 2,00,000. 2,00,000 का 10% हमें BDR प्रोवाइड करना है. सो योर BDR न्यू इज ऑफ 20,000. ओके, योर आउटर कॉलम विल बी ऑफ 1,80,000. ये दोनों BD न्यू एंड BDR न्यू माइनस हुए हैं, यहां पे आके क्या हो जाएंगे, प्लस. इसका फॉर्मेट अपन ने पहले भी किया था. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट. यहां पे लिखे जाता है बैड डेट्स ओल्ड प्लस BD न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड. ओल्ड कहां से मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस में से. ट्रायल बैलेंस हैज सिंगल इफेक्ट, सेम साइड. 33,000 तुम्हारा बैड डेट होगा और रिजर्व है 49,500. सो 33,000 and 49,500. इज दिस क्लियर? BDR क्रेडिट साइड गिवन है, हमने क्या किया है, डेबिट में से माइनस, दैट मीन्स क्रेडिट. नाउ BD new you will get it from adjustment, that is of 30,000. BDR new
is of 20,000. फाइन. जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो इट विल कम टू 83,000 लेस 49,500. Your outer column will be 33,500. Likewise, moving further on to next adjustment, 10% interest on capital, 6% interest on drawings. Now, balance sheet में liability side plus interest on capital. यहाँ पे हम दिखाएंगे plus interest on capital 33,000. Is this clear? Now this is the expense for the business. ये अपन ने लास्ट वाले टॉपिक में भी देखा था. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000. ओके. और 6% इज फॉर ड्राइंग्स. यहाँ पे ड्राइंग्स खुद भी लेस होती हैं तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हम ओवरऑल क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6%, दैट कम्स टू 1584. 1584. अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, that is 1584. Is this clear? Next and the last adjustment, very important to understand. Calculate depreciation at 10% on fixed assets as per straight line method. SLM को यूज करना है. This SLM method we have done in our depreciation accounts chapter. Fine? SLM कौन सा वाला मेथड होता है, जो एक बार आपने डिसाइड कर लिया वो हर साल उतना डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है. नाउ दिस 48,000 गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस वो डेप्रिशिएट होके आ रहा है. योर कॉस्ट प्राइस गिवन इज ऑफ 6 lakhs. हमें जो डेप्रिशिएट करना है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड वो 6 lakh का 10% करना है. 6 lakh का 10% कम्स टू 60,000. फाइन. ये जो 60,000 है वो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. ये 48 का नहीं, 6 lakh का 10% कम्स टू 60,000. आउटर कॉलम इज ऑफ 4,20,000. इज दिस क्लियर? फिक्स्ड असेट्स हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 6 lakh. उस 6 lakh का आपको 10% कैलकुलेट करना है. टू depreciation on fixed assets कितना 60,000. Is this clear? Now each and every effect is being given. Now it's the time for totaling and before totaling हमारे जो भी outer columns नहीं हैं उन्हें हम outer कर देंगे. Your purchase will amount to 2,85,400 and your sales is of 8,02,000. What else is remaining over here? Okay, everything is done. Now totaling. हमें क्या करना होगा, ट्रेडिंग का टोटल on this side we will check it out whichever is greater. Fine. Total of trading account is 9,85,000. Shifted on the debit side 9,85,000 to gross profit. टू ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है. उसके लिए ये सारे डिडक्ट करोगे और आएगा 587,300. नाउ ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा इनकम, हमारा प्रॉफिट, हमारा गेन है बाय ग्रॉस profit transferred from trading account 587,300. Now what we are supposed to do, हमें सारे क्रेडिट्स को प्लस करके यहाँ पे टोटल करना है and total comes to 623,884. Shifted on the left hand side debit side 3,884. डिडक्ट करेंगे हमारे ये सारे एक्सपेंसेस को लेस करने पर आएगा टू नेट प्रॉफिट
2 net profit comes to 320284. And don't think this is my pattern. You are supposed to close the accounts by doing double line. This already we have learned in our ledger posting. Net profit है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट 320284. Capital interest on capital plus net profit less both these will amount to, it is 655,300 plus all these will be the total of liabilities side. Total is 9,56,600. Fine. Now this should be the same total on asset side. Then only we can say that our final accounts is tallied. हमें क्या करना होगा, इसका भी टोटल करना होगा and you are supposed to check that 956600 आ रहा है कि नहीं. I hope that you people have understood question number 9 and your today's homework is question number 9 and illustration number 27. Both these are as similar as one another, so please do complete in your fair notebook. Thank you students and have a nice day.